Hi friends, this is Nishant and I hope you all are fine. I hope your trading is doing good. If not good, then at least you are surviving. That is the most important thing. In these times of turmoil, uncertainty everywhere, be it of war, be it of tariffs earlier. And in fact, even much before war and tariffs, I would like to remind you that Indian market has been correcting since September 2024. So we are in a correction since September 2024. It came down, made a base, went up again, then again came down. So we are still broadly in a correction from September 2024, much before the tariffs and the wars. Point being that you have to be adaptable. Actually, the reason of this talk is that earlier during the day, I did a post in the Facebook group and the Insta and TIC channels as well. I did a post that trading is something, or stock market is something that you can never master it. You can never say that now I know everything, because you can never know everything, because there is no limit to what is everything. It's like music. I always say that music, arts, creativity, creative fields, they are abstract fields. Even science, the logical field, even there, nobody can, even the Nobel guy cannot say that now he knows everything. In fact, I always joke about this, that एक 4th क्लास का या 5th क्लास का मैथ्स का टीचर या 5th क्लास की मैथ्स की टीचर से अगर आप पूछोगे कि क्या आपको मैथमेटिक्स आती है, ही और शी विल से कि हाँ आती है. बट अब अगर आप एक क्वांटम मैथमेटिशियन है या एक नोबेल लेवल का मैथमेटिशियन है, आप उससे पूछोगे कि डू यू नो मैथमेटिक्स, ही वुड से नो, आई एम स्ट्रगलिंग. सो इट्स अबाउट, जब आपको ये पता लगता है ना कि ये कितना वास्ट है, तो आपको ये एहसास होता है कि आपको ये कभी नहीं आ सकता. जिनको लगता है कि ये सिर्फ बिगिनर्स को ही लगता है कि उनको ये आ गया, बट जितना आप ये जानते जाते हो कि जानने को कितना है, उतना आप ये जानते हो कि आपको कुछ नहीं आता. तो ट्रेडिंग इज वन सच फील्ड. यू कैन नेवर बी अ मास्टर एट इट. At most, you can be a good student of it. You will always be you're always going to remain a student of trading, student of market. So ये attitude हमेशा रखना है लाइफ में. हमेशा एक वाइट बेल्ट मेंटेलिटी कि हमेशा सीखते रहना है, कुछ नया सीखना है, कुछ सीखना है. और पता है सबसे चैलेंजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज बनाती है ट्रेडिंग को, कि इट कैन नेवर बी मास्टर्ड. दिस इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. दिस इज व्हाट मेक्स इट a worthy pursuit, right? Same with sports. Nobody can say that he's a master of it. Even the masters can fail, which means that there is nothing called perfection. While everybody is just a student. Some are better students, some are deeper students, some are intense students, some are shallow students. यहां पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रेड है ना, ट्रेडिंग जर्नी में, वो ट्रेड स्किल या डिसिप्लिन. स्किल जरूरी है, मैं मानता हूं. एक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल स्किल जरूरी है. ही शुड नॉट ओनली जस्ट नो हाउ टू रीड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बट ऑल्सो नो इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग, all that, right? Fundamental is not about digging the past corpses. It is about extrapolating the future as well. वैल्यूएशन अपने आप में एक आर्ट है. वैल्यूएशन करना कोई मैथमेटिक्स नहीं है. इट्स दैट नंबर इज नॉट अ साइंटिफिक नंबर, राइट? बिकॉज बहुत सारे मूविंग पार्ट्स इंक्लूडेड हैं. अब अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो तो भी स्किल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू मस्ट नो योर टेक्निकल एनालिसिस. देयर हैज टू बी सम फ्रेमवर्क, देयर हैज टू बी सम मेथड, राइट? सम पीपल do patterns kind of work, some people do candlesticks, some people do some indicator. I'm not getting into this. This is not a technical analysis video. I'm not saying here that this is right, this is wrong. I'm saying whatever you do, some skill is required. अब skill भी आ गई, चलो discipline आ गया, emotional balance भी आ गया, but एक और चीज चाहिए
वो है एडेप्टेबिलिटी। मार्केट में सबसे बड़ी स्किल एडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि इट इज लाइक आज जो चल रहा है और आपकी नॉलेज, आपकी स्किल से रिजल्ट आ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो हमेशा चलेगा। मार्केट चेंज हो जाएगी, आपका ही टाइम टेस्टेड, आपके फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, आपके फ्रेमवर्क, आपकी स्ट्रेटेजीज टाइम टेस्टेड चीजें चलनी बंद हो जाएंगी। सो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली। फिर सबसे मुश्किल पता क्या है? सबसे मुश्किल शुरुआत करना नहीं है। इट्स ईजी टू नो नथिंग एंड बिगिन, इट्स डिफिकल्ट टू नो अ लॉट एंड बिगिन। सबसे मुश्किल है बहुत आगे जाके शुरुआत करना, है ना? तो आपको ट्रेडिंग करते हुए फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल हो गए और यू आर डूइंग गुड, कंसिस्टेंट। नाउ इमेजिन दैट व्हाट यू डू स्टॉप्स वर्किंग। तो पहले तो आप डिनायल में जाते हो, आप बार बार वही ट्राई करते रहते हो। फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, एंगर आता है, रेवेंज आता है। देन अगर आप थोड़े से शार्प हो, सेल्फ ऑब्जर्वेंट हो, तो आप ये समझ जाओगे कि यार एक्चुअली में प्लेइंग फील्ड चेंज हो गई है, मुझे बदलना पड़ेगा। जो चीज़ मेरी रोजी रोटी या ब्रेड एंड बटर थी, मुझे उसको लेट गो करना पड़ेगा और मुझे नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो इस एनवायरनमेंट में चलती हूँ। एनवायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग। हाई विक्स एनवायरमेंट में अलग तरह से मार्केट चलती है, लो विक्स में अलग तरह से चलती है। आईवीज हाई होते हैं तो ऑप्शन कैसे रिएक्ट करते हैं, आईवीज लो होती हैं तो ऑप्शंस कैसे रिएक्ट करते हैं। लोग ये देखते हैं कि यार प्राइस बढ़ गया, ठीक है, साथ में कॉल ऑप्शन बढ़ गया, प्राइस थोड़ा सा गिरा, कॉल ऑप्शन ज्यादा गिर गया, अब प्राइस बढ़ के पहले से भी ऊपर चला गया, कॉल ऑप्शन उस हाई तक ही नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। आप कभी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी, राइट, कभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट होता है। टैक्सेशन पॉलिसीज आप ले लो, क्या उस जगह की टैक्सेशन पॉलिसी है, कैसा मार्केट एनवायरनमेंट है, क्या इंडेक्स चॉपी कंडीशंस में है, ट्रेंडिंग कंडीशंस में है, मोमेंटम में है या बेसिंग में है। इन सारी चीजों के हिसाब से आपके स्टाइल, आपका इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ चेंज होता रहेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? वो तो आपने उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वहां आपको रोज एक्शन भी नहीं लेना है। बट जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, दे हैव टू कीप इवॉल्विंग। सो एडेप्टेशन इज द नेम ऑफ द गेम। आप सबको याद होगा सचिन तेंदुलकर का, व्हेन हिज ब्रेड एंड बटर कवर ड्राइव, आई मीन सचिन तेंदुलकर के नाम से कवर ड्राइव जानी जाती थी, राइट? सो his bread and butter shot stopped working and he was getting out on that shot every time. He had to stop playing it. Can you imagine? आपके जिस शॉट ने आपको दुनिया में ख्याति दिलवाई है कि सचिन तो द मोस्ट टेक्निकल कवर ड्राइव, आपने अपने आप को फोर्स करके, रोक के, अपने रिफ्लेक्सेस खत्म कर दिए उस शॉट को खेलने के, एंड यू स्टॉप्ड लीविंग एवरी बॉल ऑफ साइड बॉल। क्यों? क्योंकि वो नहीं काम कर रहा है उस पिच पे, उस टीम के आगे, क्योंकि शायद वो सामने वाले लोग समझ चुके हैं कुछ चीजें। तो ऐसे ही है हर स्पोर्ट में, हर क्रिएटिव फील्ड में, परफॉर्मेंस फील्ड में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको सब कुछ आ गया हो। यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड सर्वाइविंग। अगर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और चीजों को ब्रॉडली देख पाना। मैं कल यही बात कर रहा था कि नॉलेज और पर्सपेक्टिव अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हो ना, और आप घुस के उसको पढ़ते रहते हो या काम कर रहे हो, वो नॉलेज आ रही है। पर्सपेक्टिव आता है जब आप किसी चीज से बाहर निकल के उसको देखते हो। तो अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है ना कि आप पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस, लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन, मेटा थिंकिंग अबाउट सेल्फ, आप ये सब नहीं कर पाते, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो जाती है फिर। क्योंकि ट्रेडिंग in the garb of being a trader, you are actually evolving. Trading is a journey of self-evolution. Trading is a journey of evolution of your psychology, evolution of your emotional management, evolution of your thoughts, evolution of your control, evolution of your discipline. तो आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए अगर रेडी हो ना, मुझे लगता है तो ही ये कमिटमेंट करना चाहिए। अदरवाइज देखा देखी ट्रेडिंग में घुसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि it will take everything, it will demand your everything, it wants your transformation। ऊपर से करके नहीं होएगा, आपको अपने खुद को बदलना पड़ेगा बड़ा कुछ। ऐसी चीजें जो आप बचपन से करते आ रहे हो, सोचते आ रहे हो, आपके बिहेवियर पैटर्न्स, टेंडेंसीज वो आड़े आ जाएंगी।
आपको उनको हटाना पड़ेगा तो आपको लगेगा कि फिर मैं नहीं रह गया. But then this is it. This is what spirituality does to you. This is what any field worth pursuing does to you. So बस यही था. वो कहते बड़ी जोर से बात आ रही थी, तो रास्ते में गाड़ी रोक के मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे. I hope you enjoyed. Thank you.